Welcome to my YouTube channel, League the Chemistry. I am your chemistry tutor, Umar Farooq. Today, we are going to discuss the main important branch of chemistry, that is GOC. And the topic will be according to the NEET oriented, IIT JAM oriented, and JRF NET oriented. All the questions which have been asked from the GOC will be discussed in the application part of the GOC. Today we are going to discuss the main and the first and foremost topic of GOC, that is how we can know the hybridization of an atom in a structure. As we know, we are giving the hybridization of any molecule by applying the formula of hybridization, but in GOC we have to find the hybridization of an atom. GOC में हमें क्या करना है कि हमें अगर कोई स्ट्रक्चर दिया होगा, किसी कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया होगा, आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली वही पढ़ते हैं जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हाइड्रोकार्बन में अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया होगा तो उसमें आपको किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। क्यों उसको डिस्कस कर लेंगे, इसको मैंने इसलिए चूज किया है बेटा कि जो एसिडिटी होती है, जो बेसिसिटी होती है, जो प्लेनरिटी होती है, वो इसी टॉपिक से सॉल्व होते हैं। चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Our topic is how to know the hybridization of an atom in a given structure. Generally, as we know, all of us, in organic chemistry we deal with the hydrocarbons, and hydrocarbons are of so many types. First hydrocarbon, that is aliphatic, second hydrocarbon, that is aromatic, third hydrocarbon, that is alicyclic, and fourth hydrocarbon is cyclic. Whether our hydrocarbon will be alicyclic, cyclic, aliphatic, aromatic, we have to find the hybridization of an atom in all the structures. In order to know the hybridization of a structure, we must know that hydrocarbon is of several types. Hydrocarbon is of several types. I will give a little glance. First hydrocarbon is aliphatic, and second hydrocarbon is aromatic, third hydrocarbon is alicyclic, and fourth hydrocarbon that we have to discuss is cyclic. And in all the hydrocarbons we will try to find the hybridization of an atom. As you know, aliphatic hydrocarbons are of several types. First is alkane, second is alkene, and third is alkyne. And aromatic hydrocarbons generally include benzene, C6H6, and alicyclic generally involves the cyclic structure in which there is a presence of double bond. और साइक्लिक में वो होता है कि जिसमें एक साइक्लिक रिंग होगा बेटा, उसको कहते हैं साइक्लिक। मेरे कहने का ये मतलब है जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो होते हैं एलिफैटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक। एंड एलिफैटिक फर्दर तीन किस्म के होते हैं बेटा, एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। और आपको पता है एल्केन उसको कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला, इसको ट्रिपल बॉन्ड वाला। और इसको आपको पता है कि एरोमेटिक वो होता है जो हकल्स रूल फॉलो करता है, प्लेनर होता है वो बेंजीन होता है जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है बेटा। एलिसाइक्लिक उस साइक्लिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, तो ये एलिसाइक्लिक बन गया। इसके बाद साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेन है।
आफ्टर दैट इन ऑल द सिस्टम्स मैं क्या करूंगा, मैं पर्टिकुलरली एक सिस्टम चूज कर लूंगा, मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, ले लो स्क्रीन। शाबाश, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम ट्राई टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे इन ऑल द हाइड्रोकार्बन्स। चलो, इससे पहले मैं आपको बता दूंगा जनरली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, there are only three types of hybridization, namely sp, sp2 and sp3। बेटा जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, जीओसी में पढ़ो या नेमिड रिएक्शन में पढ़ो, चाहे कोई भी ब्रांच हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें तीन टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। एक होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी होती है sp2, तीसरी होती है sp3 hybridization. These are the three types of hybridizations which are present in the hydrocarbons, whether it is aliphatic, aromatic, alicyclic, cyclic. These three types of hybridizations are present in these molecules. After that, if I will give a little glance about sp hybridization, बेटा ये क्या होता है, ये एक ऐसी hybridization होती है जिसमें 1s orbital gets mixed with 1p orbital, leads to the formation of 2sp hybrid orbitals। बेटा आपने 11th में पढ़ा है कि जब दो ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, तो वो क्या करते हैं, वो उतने ऑर्बिटल हमें वापस देते हैं। और वही मैंने कहा कि जब एक s एक p के साथ मिक्स होता है तो वो हमें दो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं बेटा। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। सिमिलरली 2p orbitals gets mixed with 1s orbital and give 3sp2 hybrid orbitals। बेटा इसमें क्या होता है कि एक s 2p के साथ मिलता है तो वो हमें 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं। तो इसका भी आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। तो उसके बाद हमने ये डिफाइन करना है, तो और कुछ इलस्ट्रेशन लेंगे जिससे हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर लेंगे। बेटा ले लो इसके स्क्रीनशॉट। डन बेटा, हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बच गई बेटा। मैं क्या करता हूं, मैं एक एक पॉइंट को डिफाइन करता हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक भी पॉइंट छूटता है तो प्रॉब्लम आती है बेटा। अब मुझे किसको डिफाइन करना है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन उस हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं बेटा जिसमें when 1s orbital gets mixed with 3p orbitals and leads to the formation of 4sp3 hybrid
ऑर्बिटल्स बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें एक s बेटा 3p के साथ मिलता है तो वो क्या करते हैं बेटा, px py pg के साथ हाइब्रिड होता है तो नए क्या 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं, जिनको फिर क्या कहते हैं, sp3 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हो गई है लिटिल ग्लैंड्स हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं। वरना ये इतना अच्छा कंसेप्ट है कि इस पे बहुत से लेक्चर बन सकते हैं। अगर किसी को पढ़ना होगा तो कमेंट कर लेगा, इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे। आफ्टर दैट ये थी थोड़ी ग्लैंड्स किन पे, हाइब्रिडाइजेशन पे। तो इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम कुछ इलस्ट्रेशंस आपको दिखाएंगे। डन बेटा। इसका मतलब है हम कुछ इलस्ट्रेशन दिखाएंगे जिससे हम अब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, चाहे फिर वो sp हो, sp2 हो या sp3 हो बेटा। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको सिंपली क्या बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर दिया होगा, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्केन। अगर हमें कोई एल्केन दिया हुआ होगा तो उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, तो आपको कोई एग्जामिनर बताएगा कि आपको किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। एट दैट टाइम हाउ वी विल अप्रोच, यही हमें बेटा देखना है। आपको पता है अल्केन उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को कहते हैं बेटा जिसमें क्या प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हम सिंपलेस्ट अल्केन लेते हैं, कौन लेते हैं, मीथेन लेते हैं बेटा। आपको पता है सबको, जो मीथेन होता है बेटा ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है बेटा। ये क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है। इसका मतलब क्या है, जो सेंट्रल कार्बन एटम है उस पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इनका एंगल कितना है बेटा, 109.5 है। इसी को हम टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलते हैं बेटा। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा मीथेन है उसमें कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजनों के साथ एक एक बॉन्ड बनाता है बेटा। अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हमें फाइंड क्या करनी है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब सवाल बनता है कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। ट्राई टू काउंट द sigma bonds formed by the carbon and then write them। फिर उनको लिखना है, वो कितने आएंगे। मैं कहता हूं कि बेटा इस कार्बन को देखना है, जिस एटम की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी बेटा उसको देखना है। तो उसको क्या देखना है, उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। अब देखना है कि इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं बेटा, 1 बनाया है, 2 बनाया है, 3 बनाया है, 4 बनाया है। अब क्या करूंगा मैं इसको लिखूंगा कितने बॉन्ड बनाए हैं, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स बेटा। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। इसका क्या मतलब है, जितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है उतनी उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब इस 4 को हम कैसे लिखे, हमें पता होता है किसमें 4 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं बेटा, वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कैसे बेटा, देखो जिसको कोई पावर नहीं होता है इसका कौन सा पावर होता है, 1 पावर होता है। और जो ऊपर लिखा होता है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सुपरस्क्रिप्ट का आपस में सम कर लो, क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। इसका मतलब जो हमारा कार्बन था वो कितना हाइब्रिडाइज्ड था,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। इससे हमें क्या पता चला, कंक्लूजन यही निकला, द सिग्मा बॉन्ड्स formed by an atom is equal to the hybridization। मैं क्या बताता हूं, जिस एटम की, बेटा समझ लेना बात को, जिस एटम की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी वो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। फिर ऊपर सुपरस्क्रिप्ट का सम कर लो, वो कितने बराबर आता है, 4, और वो क्या हो गया, यहां भी 4 हो गया। इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या है, sp3 है हाइब्रिडाइजेशन। ये हमने किस में देखा, अल्केन में देखा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। डन बेटा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। बेटा हम बहुत एग्जांपल कर लेंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये टॉपिक एक्चुअली बताता क्या है। बेटा अनदर एग्जांपल वी विल टेक फ्रॉम एल्कीन्स। बेटा दूसरी जो हम एग्जांपल लेंगे वो हम किसकी लेंगे, एल्कीन की लेंगे। एल्कीन में मैं क्या लूंगा, पहले CH3 लूंगा बेटा, CH लूंगा, C डबल बॉन्ड H लूंगा, 2 लूंगा। इसका मतलब मैंने प्रोपीन लिया बेटा, क्या लिया, प्रोपीन लिया। इसमें कितने कार्बन है बेटा, मेरे साथ गिनो, 1 2 3 कार्बन है। तो मैं क्या करूंगा, हम मिलके सब क्या करेंगे, इस कार्बन नंबर 1 की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इस कार्बन नंबर 2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इस कार्बन नंबर 3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूंगा बेटा, मैंने पहले ही बताया। आप क्या कर लो काम, आप देखो इस कार्बन ने बेटा क्या, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, जितने ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उतनी उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब कैसे निकालेंगे, सर इस कार्बन को बॉन्ड के समेत नीचे लाओ, कार्बन नंबर 1, देखो कैसे लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन नंबर 1। देखो बेटा क्या है, इसको नीचे लाओ, जितने इसने बॉन्ड बनाए हैं, इसने डबल बॉन्ड यहां से बनाया, यहां से एक H है, यहां से एक H है, यही यूनिट है कि नहीं है। अब क्या करना है बेटा, आपको पता है चाहे एटम कितने भी बॉन्ड बनाए, 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, जितने भी बॉन्ड बनाए हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने होते हैं, 1 होता है बेटा। और दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तीसरा भी क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। और चौथा क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, जो आपने पढ़ा होगा बेटा, जो आपने पढ़ा होगा बेटा, उसको डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। इसका मतलब है इसमें एक ही बॉन्ड क्या होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा बेटा। और पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड ही नहीं करते हैं। आफ्टर दैट जब मैं इसको गिनूंगा, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए बेटा, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसका मतलब है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन नंबर 1 कितने हैं बेटा, 3 है। अब क्या करना है, हमें कुछ ऐसी हाइब्रिडाइजेशन देखनी है जब उनके सुपरस्क्रिप्ट का सम किया जाए, वो कितना आना चाहिए बेटा, 3 आना चाहिए। सब समझ लेंगे सर, अगर मैं एक हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास बचती है, हम उसको क्या कहते हैं, S, और क्या कहते हैं, P। अगर इसके ऊपर 1 होगा, इसके ऊपर 2 होगा, 2 + 1 कितना हो गया, 3। देखो ये 3 आ गया, इसका मतलब है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इसका मतलब है जो ये कार्बन था इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी। लेट अस ट्राई टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन नंबर 2। आप कर लो, आपको मैं 2 मिनट देता हूं या 1 मिनट देता हूं, आप ट्राई कर लो, बाद में हम मिलके कर लेंगे बेटा। आप कर लो ट्राई।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ऐसे ही बताया होगा, लेकिन मैं अब ट्राई कर लूंगा। आप मेरे साथ अपने आंसर का मैच कर लेना। आपने ऐसे किया होगा कि लेट अस ट्राई टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन फॉर कार्बन नंबर 2। देखो बेटा, आपने यही किया होगा, मुझे पूरी पता है कि आपको समझ आ गया। आपने इसको नीचे लाया होगा तो आपने यहाँ से H बनाया होगा, यहाँ से दूसरा बॉन्ड बनाता है बेटा, तो यहाँ से कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। लेकिन हमें पता हुआ है जब 2 बॉन्ड होते हैं उसमें एक ही बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा होता है, और दूसरा बॉन्ड क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड होता है। और हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या गिनते हैं बेटा? एक ही बॉन्ड गिनते हैं, वो कौन होता है? सिग्मा बॉन्ड। लेट अस ट्राई टू फाइंड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय दिस कार्बन। एक ये है बेटा, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसका मतलब है इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp2 आएगी, क्योंकि जब हम सुपरस्क्रिप्ट का सम कर लेते हैं तो वो हमारे किसके बराबर निकलता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। समझ आया बेटा? आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। प्लीज डन बेटा। आई विल ट्राई टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन नंबर 3। मेरे साथ करना बेटा, मैं भी करूंगा, आप भी करना। हम कार्बन नंबर 3 को नीचे लाते हैं, तो इसने यहां से एक बॉन्ड बनाया है बेटा। अब क्या करना है? बाकी इसके साथ कितने बॉन्ड है बेटा? 3 बॉन्ड है। यहाँ से एक H है, यहाँ से एक H है, यहाँ से एक H है, तो तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड इसका किसके साथ है? इस कार्बन के साथ है कि नहीं है? तो क्या करना है? अब हमें किसको आइडेंटिफाई करना है बेटा? इसने कितने बॉन्ड बनाए? कितने बॉन्ड बनाए? कौन से बॉन्ड बनाए? सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4। देयरफॉर हाउ मेनी बॉन्ड्स? देयरफॉर देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स है बेटा? 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। और वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 4 ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं? वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे है? सुपरस्क्रिप्ट का काम कर लेंगे। s3 + 1 = 4। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स? सिग्मा बॉन्ड्स कितने बराबर हो गए? 4 हो गए। और ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है। आपने अब क्या सीखा कि हमें जो एटम दिया होगा हमें देखना है वो कितने बॉन्ड बनाता है। कौन से बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और उसके लिए मैंने आपको बताया चाहे कितने भी बॉन्ड बनाए एक ही क्या होता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम और कुछ ट्राई कर लेंगे जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, जिसमें हमें थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा बेटा। जल्दी कर लो बेटा। ले लिया बेटा? तो जो फर्दर हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं तो वो करने जा रहे हैं हम अल्काइन से बेटा। जो अल्काइन होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो हम लेंगे तो मैं क्या लूंगा? C ट्रिपल बॉन्ड CHH, जिसका नाम हम एसिटाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन बोलते हैं। जो आप सबने बेटा सुना होगा, एसिटाइलिन में कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? 3 बॉन्ड होते हैं। एसिटाइलिन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। अब क्या करना है? दोनों कार्बन की क्या करनी है? हाइब्रिडाइजेशन करनी है। टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 में आपने क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ढूंढने हैं बेटा। क्या ढूंढने हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। इस कार्बन को नीचे लाओ बेटा। जो कार्बन अलॉन्ग विद द बॉन्ड नीचे लाओ। यहां से 3 बॉन्ड है, यहां से C है, यहां से H है बेटा। इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? इसमें आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है बेटा, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए। मैंने पहले ही बताया कि एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। वो कौन है बेटा? ये सिग्मा बॉन्ड है। बाकी 2 क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं, जो हम किस में नहीं गिनते हैं बेटा? जो हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनते हैं। ये भी क्या है बेटा? सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब है इसने क्या बनाए हैं?
कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए बेटा। और इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए। और ऐसी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जिसको हम ऊपर से सुपरस्क्रिप्ट का सम करके हमारा 2 आए, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास एक ही बचती है, वो है sp। इनका ऊपर से सम कर लो, क्या निकलेगा सर, 2। वो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ sigma bonds, therefore the hybridization of carbon number 1 is sp। same is the case with this carbon, देखो बेटा ये भी ऐसे ही कार्बन है, therefore the carbon number 2 will also have sp hybridization। ये हो गया बेटा हमारा एलिफैटिक का, मैंने अल्केन में भी दिखाया, अल्कीन में भी दिखाया, अल्काइन में भी दिखाया बेटा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तो हम और फर्दर इसको एक्सटेंड करते हैं अपने टॉपिक को, और आप एंजॉय करते रहो बेटा। ठीक है बेटा, हो गया अल्केन का भी, अल्कीन का भी, अल्काइन का भी। थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं बेटा। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमें क्या करना है कि हमें इसमें बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है बेटा। इफ अगर मैं अब केस को हाईलाइट करता हूं बेटा, किसको करता हूं, केस को हाईलाइट करता हूं। इफ देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स, बेटा समझ लेना बात को। इसी से आईआईटी जैम से क्वेश्चन पूछा गया, इसी से एससीटीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी से बेसिसिटी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें अभी तक हम जो कर रहे थे बहुत आसान था, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है बेटा। मैं कहता हूं कि अगर कोई हमें स्ट्रक्चर मिलता है बेटा, कोई हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर मिलता है, चाहे फिर वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो या साइक्लिक हो या एलिसाइक्लिक हो, और उसमें उस एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा जिसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी, तो उस वक्त हम क्या कर लेंगे। आपको पता है बेटा, पहले मैं बताऊंगा लोन पेयर क्या होते हैं, आपको पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा। लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आर दोज इलेक्ट्रॉन्स which do not take part in bonding, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है बेटा, उनको क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। therefore they are also known as non bonding, they are also known as नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और उनको क्या किया कहा जाता है बेटा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा नाम उनका बेटा है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा समझ लेना बात को, अगर मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास लोन पेयर होंगे स्ट्रक्चर में, और पर्टिकुलरली वो उस पे प्रेजेंट होंगे बेटा जिसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी, एट दैट टाइम क्या यही मेथड है सर जो आपने पढ़ाया, उसी को देखने के लिए मैं ये केस हाईलाइट कर रहा हूं। पहले मैं बता रहा हूं आपको लोन पेयर क्या होते हैं। लोन पेयर आर दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, और इसी की वजह से उनका दूसरा नाम क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इसका भी थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। लोन पेयर आपको क्लियर हुआ होगा और आपने पहले भी सुना हुआ होगा, तो आज मैंने फिर से रिमाइंडर दिलाया आपको। अब क्या है कि अगर मैं लोन पेयर की बात करूं तो मेरे पास 2 किस्म के लोन पेयर होते हैं। एक होता है लोकलाइज्ड लोन पेयर, दूसरा होता है डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। बेटा एक होता है लोकलाइज्ड लोन पेयर,
दूसरा होता है डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। बेटा मैं क्या कहता हूं आपको, आपको इसकी तरफ नजर डालना है। लोकलाइज का मतलब है सर आपके सामने खड़ा है, ये एक ही पोजीशन पे खड़ा है, ना इधर जाता है ना इधर जाता है, इसका मतलब है एक ही जगह खड़ा है, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। और डिलोकलाइज का मतलब है बेटा जब मैं कभी इधर भी जाता हूं तो कभी मैं इधर भी जाता हूं, वो एक ही पोजीशन पे नहीं होते हैं बेटा, इसको कहते हैं डिलोकलाइज्ड। अब देखना है ये लोकलाइज्ड कैसा होता है, डिलोकलाइज्ड कैसे होता है, आपको बताने के लिए मैं कुछ इलस्ट्रेशन लेता हूं बेटा। लोकलाइज्ड लोन पेयर को आपको मुझे समझाना है, लोकलाइज्ड किसको कहते हैं बेटा, इसको समझाने के लिए मैं एक आसान सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मैं इसके लिए क्या लेता हूं, मैं इसके लिए कोई एटम लेता हूं। मान लो जनरली हम कौन लेते हैं केमिस्ट्री में, कार्बन केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन लेते हैं। तो इसमें क्या लेंगे, कार्बन डबल बॉन्डेड विद कार्बन, और क्या करते हैं इसके साथ कोई एलिमेंट रखते हैं। जनरली मैं उसको किससे डिजिग्नेट करूंगा बेटा, एक्स से डिजिग्नेट करूंगा। तो इसके ऊपर मैं क्या रखूंगा, लोन पेयर रखूंगा। ये नाइट्रोजन भी हो सकता है, ये क्लोरीन भी हो सकता है, ये ब्रोमीन भी हो सकता है, जो आपको मर्जी हो तो वो ये हो सकता है बेटा। अब क्या करना है मुझे, तो मैं कहता हूं कि ये जो लोन पेयर है क्या ये एक ही जगह पर प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से ये बॉन्ड मिटा के इनके बीच में डालता हूं, ठीक है, इनके बीच में डालता हूं। एट दैट टाइम अगर आप देखोगे ये लोन पेयर जो हमारे पास बचता है बेटा, आप देखो ये क्या यहां जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड। ये कंजुगेशन में नहीं जा सकता है। ये कंजुगेशन में कब जा सकता था बेटा, जो मैंने पहले स्ट्रक्चर दिखाया था आपको। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता तो ये यहां जाता बेटा, तो ये यहां जाता बेटा, इसका मतलब है यहां ये स्ट्रक्चर बनना था हमने, इसका मतलब है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था इसका। क्या ये लोन पेयर एक जगह रह गया, नहीं रहा बेटा। और ये लोन पेयर क्या डिलोकलाइजेशन में जा सकता है, नहीं जा सकता है। इट इज अ पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड एंड लोकलाइज्ड लोन पेयर में बी डिफाइंड एज ए लोन पेयर बेटा। अगर लिखना होगा आप लिख भी सकते हो, लोकलाइज्ड लोन पेयर इज ए लोन पेयर विच इज ए पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड, विच इज ए पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड। आप देखो जो ये लोन पेयर है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड। ये किसका पार्ट है, it is a part of double bond and it is not able to undergo डिलोकलाइजेशन। ये किस में नहीं जा सकता है बेटा, डिलोकलाइजेशन में नहीं जा सकता है, देयरफॉर इट इज लोकलाइज्ड। अब जो दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी आपको समझाने के लिए, ये डिटो एग्जांपल किसकी है बेटा, नॉन लोकलाइज्ड लोन पेयर की या डिलोकलाइज्ड लोन पेयर की। और डिलोकलाइज्ड लोन पेयर आप देखो बेटा इसकी तरफ, अभी लोन पेयर कहां पर था, अभी लोन पेयर एक्स पे था, अब वो कहां चला गया, कार्बन पे चला गया। इसका मतलब है एक ही जगह नहीं रहा, कभी सर इधर गया कभी सर उधर गया, कभी एक्स पे था कभी कार्बन पे है। इसको कहते हैं नॉन लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। और अगर इसकी डेफिनेशन लिखे बेटा, डिलोकलाइज्ड लोन पेयर इज ए type of loan pair, is a type of LP. LP means loan pair which undergoes डिलोकलाइजेशन। जो किस में जा सकता है, डिलोकलाइजेशन में जा सकता है। अगर हमें अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई करना होगा, आप ये भी कह सकते हो बेटा इट इज अ पार्ट ऑफ कंजुगेशन। ये किसका पार्ट है, कंजुगेशन का पार्ट है। अब सवाल ये बचता है सर इससे हमें क्या लेना देना है, इससे हमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है। सर जो आईआईटी जैम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछे गए, इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी कर लो। चलो मैं बोर्ड को इरेज करता हूं बेटा, आपको समझ आया होगा, आई होप आप समझे होंगे। तो क्या करेंगे, कोई इलस्ट्रेशन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं जिसकी
बदौलत मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिसके जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसका क्या माने है जो हमने अभी तक पढ़ा है। आप सबने पढ़ा होगा, ये एक कंपाउंड है हमारे पास जिसका नाम है पीरिडीन, जिसका नाम है पीरिडीन। इसको क्या बोलते हैं? पीरिडीन बोलते हैं। कोई पायरिडीन बोलता है, जिसको जो मर्जी है प्रोनाउंसिएट करे। मैं इसको पीरिडीन बोलता हूं। और पीरिडीन में बेटा हमारे पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। हमारे पास लोन पेयर होता है। देखो हमारा केस बन गया। अब देखना है कि ये लोन पेयर अगर किसका पार्ट था? डबल बॉन्ड का पार्ट था। ये क्या बन गया फिर? आप मुझे बता लो। ये बन गया लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बन गया? लोकलाइज्ड लोन पेयर बन गया। सर क्या इसका क्या माने? इससे हमें क्या लेना देना है? इससे हमें यह पता चलता है जब लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा बेटा, उसको क्या करना है? उसको हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड के बराबर लेना है। मैं कहता हूं जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा उसको एक सिग्मा बॉन्ड के बराबर लेना होता है, और जो डिलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा उसको किसमें नहीं लेना होता है? हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेना होता है, सिग्मा बॉन्ड में नहीं लेना होता है। इसका मतलब उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम किसको करते हैं? पाई बॉन्ड को करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको कोई बताए बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आपको पता है नाइट्रोजन जो किसका है? पीरिडीन का है। इसकी क्या निकालनी है बेटा? हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम अपना प्रोसीजर वापस लाएंगे। हम अपना प्रोसीजर वापस लाएंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अब और एक चीज इसको ऐड करना है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर आ गए, प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब लोकलाइज्ड लोन पेयर, अब देखना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 है, यहां से 1 बनाया, यहां से 2 बनाए, 1 बनाया, 2 बनाए, क्योंकि तीसरा क्या है? पाई बॉन्ड है बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड है, और प्लस क्या करना है? लोकलाइज्ड लोन पेयर करना है। लोकलाइज्ड लोन पेयर कितना है? 1 है। इसका मतलब 3 आ गया। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की नजर डालें, किसकी सुपरस्क्रिप्ट का सम 3 आता है, शायद वो sp2 हो गई बेटा। इसका 1 हो गया, देखो 3 आ गया। इसका मतलब सुपरस्क्रिप्ट का सम किसके बराबर आना चाहिए? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। देयरफॉर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और ये सही भी है। जो पीरिडीन होता है ये प्लेनर होता है, देयरफॉर इट इज एरोमेटिक। और मैंने क्या कहा? जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होता है उसको सिग्मा बॉन्ड में गिनना है, और जो डिलोकलाइज्ड लोन पेयर है उसको ट्रीट करना है एज ए बेटा, एज ए पाई बॉन्ड। उसका स्क्रीनशॉट लो। बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो कोई क्वेश्चन भी पूछा गया डी यूनिवर्सिटी में, और बाकी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी क्वेश्चन पूछती है बेटा। स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा मैं इसको इरेज करता हूं। आपने उठाया होगा, आई होप समझे भी होंगे। दूसरी एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो मैं लेता हूं, आप सब ये जानते हैं, HCN की एग्जांपल लेते हैं। HCN हाइड्रोसाइनाइड की एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी हमें यहाँ एक लोन पेयर होता है। आप देखो ये भी पार्ट किसका है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। अब क्या है? ये लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है? जब भी लोन पेयर किसका पार्ट होगा? जब भी लोन पेयर किसका पार्ट होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट होगा। इसको क्या कहते हैं बेटा? लोकलाइज्ड लोन पेयर कहते हैं। जब ये लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा तो ये किसमें काउंट करना है? हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना है। देयरफॉर अगर हम किसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें, एन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, वो किसके बराबर होगी? सिग्मा बॉन्ड के बराबर होगी, प्लस लोन पेयर। मगर कौन लोन पेयर? लोकलाइज्ड लोन पेयर। अगर हम इस फार्मूले में किसको लगाए, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 1 सिग्मा बॉन्ड बनाया। दूसरा भी पाई बॉन्ड है, तीसरा भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, और ये भी क्या है? पाई बॉन्ड है। ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए?
एक बनाया, और क्या है, लोन पेयर कितना है, एक है, और इसका मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए उसका सम क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो वो मेरे पास कौन बचती है, sp हाइब्रिडाइजेशन। देयरफॉर दिस नाइट्रोजन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। और जो सच भी है, आपको पता होगा ये क्या होता है, sp2 hybridized हो, sp hybridized होता है। After that, if I will try to extend the topic on this carbon, इसकी आप बेटा निकालो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, क्या इसके पास कोई लोन पेयर है, नहीं है, तो इसमें ये फार्मूला अप्लाई नहीं होती है। कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, एक है, 2 है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, sp हाइब्रिडाइजेशन बन गई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट उठा लो बेटा। उसके बाद हम और एग्जांपल करते हैं। चलो मैं इसको इरेज करता हूं बेटा। आई होप आप समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट उठाया होगा। अब मैं एरोमेटिक में कोई एग्जांपल लेता हूं, तो एरोमेटिक में जनरली हम लोन पेयर वाली एग्जांपल कर चुके हैं। अब कोई एग्जांपल ऐसे करते हैं जिसमें कोई लोन पेयर नहीं आता है। तो सिंपल एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताई, जिसमें क्लासिफिकेशन मैंने बताई थी, बेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। आप सबको पता है जो बेंजीन होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं। तो इसकी तरफ नजर डालेंगे, इसका मैंने मॉडल लाया बेटा, इसकी तरफ आप नजर डालो। ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गए, ये 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। इसका मतलब है C6 है कि नहीं है। तो कितने बॉन्ड है इसमें, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, 5, और जिसको मैं पकड़ा हूं 6। इसकी फार्मूला फिर इसके हिसाब से क्या बनती है बेटा, C6H6। अब देखो ये कितने हैं, इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं। अगर इस स्ट्रक्चर की तरफ नजर डालोगे, एक डबल बॉन्ड ये हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया। आप देखो मैंने यहां भी बनाया, पहले क्या बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया, फिर क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, फिर क्या सिंगल बॉन्ड बनाया है। और जो मैंने आपको स्ट्रक्चर देखा, ये एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर है, आप देख लेना यहाँ से। यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या नहीं रखे हैं, H नहीं रखे। अगर यहाँ मैं H रखता हूं तो ये एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर बनेगा जो मैंने आपके सामने 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखा। अब अगर आपसे कोई कहे कि आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, इसका मतलब है जैसा ये कार्बन है वैसा ये कार्बन है, वैसा ये कार्बन है, वैसा ये कार्बन है, वैसा ये कार्बन है। एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, पूरी कार्बन रिंग की हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी। अब देखना है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसको मैं कार्बन नंबर 1 देता हूं। इस कार्बन को देखो, कार्बन नंबर 1 को देखो, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, देखना है कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए। इससे थोड़ी डिफिकल्टी होती है, आपको यहां देखना है। मैं क्या बताता हूं, इस कार्बन की हमें लेनी है 5 मिनट के लिए, इस कार्बन की लेनी है, क्या लेनी है, हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। हमारे पास कोई नहीं है, हमें किससे बताना है, हमें एक स्ट्रक्चर से बताना है। स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप इसकी तरफ नजर डालो। जो ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, यहां जनरली ये पाई बॉन्ड बनाता है, और दूसरा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब है 1 है सिग्मा बॉन्ड, 2 है सिग्मा बॉन्ड, 3 है सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब ये जो कार्बन है कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। और जनरली क्या है, ये पाई बॉन्ड है, जनरली नहीं ये पाई बॉन्ड है। इसका मतलब है 3 में किस में मुझे सम आएगा, sp2 में सम आएगा। इसका मतलब है जो मेरा कार्बन है किसमें, बेंजीन रिंग में कार्बन है, वो कितने हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। दैट इज व्हाई योर टीचर आर सेइंग दैट आवर रिंग इज प्लेनर। प्लेनर का ये मतलब होता है अगर मैं इसको 2 एक्सिस के दरमियान डालूं तो इसमें थिकनेस होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज अ वेरी यूजफुल ट्रिक टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर प्लानरिटी। और जो इसका एप्लीकेशन पार्ट होगा वो हम देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकते हैं बेटा हम, और कुछ एग्जांपल कर लेंगे। तब तक तुम इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। डन बेटा, आई विल इरेज द बोर्ड।
Let us take one more important example of imidazole. I will try to draw the structure of that very thing. Please help me out if I am wrong. This is the structure of the imidazole, in which the two nitrogens are present as a heteroatoms in 5-membered ring. Now I have to find the hybridization of both the nitrogens. This nitrogen, I will highlight this as a nitrogen number 1, this nitrogen number 2. अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसकी मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के, तो मुझे पता है, आप मुझे ये बताओगे कि हमें पता है जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और जिसमें लोन पेयर होंगे। अब देखना है ये लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है, प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब मुझे किसकी पर निकालनी है? नाइट्रोजन 1 की। देखो जो बेटा ये लोन पेयर किसका पार्ट है? डबल बॉन्ड का पार्ट है। क्या ये लोकलाइज हो सकता है? क्या ये डिलोकलाइज हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये अपनी जगह है। इसका मतलब है एक बॉन्ड यहां से बना, ये क्या बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा बॉन्ड भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। और एक क्या है? लोन पेयर। इसका मतलब है 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर। इट मीन्स दैट इट कम्स 3. And what is the hybridization in which we will add the superscripts? It will come 3, that is S1P2, that is 3. Therefore the hybridization of this N1 is sp2 hybridization, that is sp2 hybridization, and obviously it is sp2 hybridization. Now I will try to find the hybridization of this नाइट्रोजन एटम 2। नाइट्रोजन एटम 2 को भी यही लगा लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बेटा प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर है कोई? नहीं बेटा, ये क्या है? डिलोकलाइज्ड लोन पेयर है। क्यों? N2 का जो ये है ये यहां भी जा सकता है। आप देख लेना, यहाँ इस स्ट्रक्चर पे दिखाऊंगा ये डिलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है। यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, सब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ये भी कर सकता है, ये लोन पेयर यहाँ भी जा सकते हैं, और ये कहां पर जा सकता है? यहाँ पर जा सकता है। इसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है बेटा। समझ लेना बात को, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगी? ये आएगी। इसका मतलब है ये रेजोनेंस में जा सकता है, ये लोकलाइज्ड नहीं है, तो इसको किसमें नहीं गिनना है? हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनना है। तो कितने लोन पेयर है इसके पास? एक है, लेकिन वो डिलोकलाइज्ड लोन पेयर है। डिलोकलाइज्ड लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनना है। अब क्या गिनना है? कितने सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं? कितने सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं बेटा? 1 बनाता है। मैं इसको हाईलाइट करता हूं ब्लैक के साथ। 2 बनाता है, 3 बनाता है, 3। देयरफॉर इट इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ हमने क्या सीखा? जो इमिडाजोल में दोनों हाइड्रोजन होते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन जो S से जुड़ा हो, चाहे वो नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, बोथ क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इससे बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जो हम इसके वीडियो के एप्लीकेशन पार्ट में, जो कमिंग सून आने वाला वीडियो है, जो एप्लीकेशन पार्ट होगा, इसके मुतालिक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, वो एप्लीकेशन पार्ट में डिस्कस होंगे। चाहे वो एसिडिटी होगी इसके रिलेटेड, चाहे वो बेसिसिटी होगी, चाहे वो प्लेनरिटी होगी बेटा। जो भी IIT एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए, नीट में क्वेश्चन पूछे गए, नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, JRF में क्वेश्चन पूछे गए, वो एप्लीकेशन पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।